उपवास की महत्वता की। Fasting. This we do daily in our lives. Anybody here who don't know the meaning of fasting? कोई है यहाँ पे जिसको फास्टिंग का अर्थ नहीं पता कि उपवास क्या होता है? You don't know the meaning of fasting? आपको नहीं पता क्या होता है उपवास? Amen. I like that. Somebody who are, the brilliant people in class. It's not that they are, they know everything. It's because they have confidence to ask questions. Amen. जो क्लास में ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, वो नहीं होते जिनको ज़्यादा समझ होती है, वो होते हैं जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। Because when they stand up, people will be laughing. क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अरे मैं खड़े होऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग तो मुझ पे हंसेंगे, तो लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते। But they have courage because they are eager to know. लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं, उनमें हिम्मत होती है कि वो प्रश्न पूछ पाएं। Amen. Amen. Brilliant students are like drivers. जो समझदार बच्चे होते हैं, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो गाड़ी में जब चालक होता है, ड्राइवर उसकी तरह होते हैं। Because they are the one who is driving and they concentrate, they pay attention. क्योंकि उन्हें जो गाड़ी चलाते हैं, वो बहुत ध्यान से चलाते हैं, इधर-उधर कुछ लग न जाए। Somebody will ask, how they know all these roads? और कोई पूछता है, अरे ये कैसे सारी तुम्हारी रूट्स पता होती है, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ जाना है? But the weak students are like those that are sitting at the back of the car. लेकिन कमजोर बच्चे को अपने पीछे बैठते हैं और ड्राइवर कहते हैं चलो भैया। You only ask, where are we? अरे कहाँ पर नई रोड आ रही, कहाँ पहुँचे भैया, हमें पता ही नहीं। Because you are confused, you don't even know where you are. क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं। Amen. Amen. So we are going to pay attention fasting. तो आज हम बात करेंगे उपवास। So do anybody know what is fasting? क्या किसी को पता है कि उपवास का मतलब क्या है? Fasting. उपवास का मतलब क्या है? Do anybody know what is fasting? Fasting. When we leave the worldly things for the heavenly things, stay with God. We just cut off from this world and we spend time. Perfect. Correct. Yes. उपवास का मतलब जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं। When we fast, we talk to God, we come closer to God. Yes. और जो हमारी गंदी आदतें हैं, मतलब जैसे फोन देखना, टीवी देखना और संसार की चीजों है, इससे इंसान दूर होता है और परमेश्वर के पास आता है। And all the worldly things that we do, we use our phone so much, we use Facebook so much, we talk so much, so all these things we stay away from all these things during fasting. Yes. Amen. Amen. That means we give a break. मतलब कि हम दुनिया की चीजों से एक ब्रेक ले लेते हैं और अलग हो जाते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। And have a time with God. और परमेश्वर के साथ समय ज्यादा बिताने की कोशिश करते हैं। That is it. सही बात। It's like somebody working in the office and say, let me take a break. जैसे कि कोई ऑफिस के अंदर वो कहता है मुझे ब्रेक की जरूरत है, ऐसे हम अपने जीवन में चलते हैं तो हमें ब्रेक की जरूरत है। I'm taking a break from office work. I'm focusing it on somewhere else. जैसे ऑफिस के काम से कहते हैं ब्रेक चाहिए कि हमें थोड़ा अलग होना है, ऐसे दुनिया के काम से अलग होना है। Yes, all those things are just you are there. But something about fasting is something that most of us don't know when we fast. पर उपवास के बारे में एक ऐसी भी चीज है जो हमें पता ही नहीं है जब हम उपवास करते हैं। When you abstain from all or some kinds of things in your life and have a time with God, it's called fasting. उपवास का अर्थ है कि जब आप दुनिया की चीजों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और आप उस समय को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के साथ वो उपवास। But how many people do fasting like one time a month? कितने लोग हैं जो हर महीने में कम से कम एक बार उपवास करते हैं? Anybody do fasting one time a month or 3 times a month? Oh, that's good. Wow, that's good. That's good. I'm going to let you to understand, in the importance of fasting, both in the religious way about Christ and outside the religious way. तो आज हमारे भाई बताएंगे कि उपवास का क्या महत्व है मसीह में होकर और मसीह के बाहर होकर भी। The importance of fasting is something that most of us don't know. उपवास का इतना बड़ा महत्व है जो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। Fasting is a great medicine. Do you know that? उपवास एक बहुत बड़ी दवाई है, क्या आपको पता है? Fasting is one of the best medicines that someone can take when you don't know. उपवास एक सबसे बड़ी दवाई है जो कोई भी खा सकता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। Do you know that when you fast
आपको पता है कि जब उपवास करते हो the energy and the strength your heart takes to walk will be decreased. आप जिस स्ट्रेंथ से जिस क्षमता से कुछ काम करते हो वो कम हो जाता है. It's like when you add oil to the engine. उपवास का मतलब ये है कि क्षमता कम मतलब शरीर से लगती है लेकिन वो बढ़ जाती है. मतलब कि जैसे आपने इंजन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया. You know that when your stomach is full so much, जब आपको पता है कि आपका पेट पूरा भरा होता है खाने से, you give a lot of work to your heart. तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. Your heart have to hit क्योंकि more in order to digest. क्योंकि हमारा जो शरीर इतना भरा हुआ होता है तो हमारे शरीर के अंदर इतना ज्यादा दिल को और शरीर के आंतड़ियों को काम करना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए मेहनत So करनी पड़ती when है. you fast, लेकिन जब उपवास करते हो so you give your heart a break. आप अपने दिल को कहते हो भाई ब्रेक का टाइम है आराम कर ले. It can be able to recover. अब वो आराम से काम कर सकता है और पहले जैसा तंदुरुस्त हो सकता है. Do you know that when you fast, जब उपवास करते हो you lower than your blood pressure. हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. जैसे हमेशा बढ़ा रहता है ना, ज्यादा खाने से कम हो जाता है. When you fast, जब उपवास करते हैं your blood calms down and works slowly. आपका लहू की जो भागने की गति है वो धीरे हो जाती है. Because when you fill your stomach, क्योंकि जब आपका पेट पूरा भरा होता है खाने से, it causes some high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर में उन्हीं लोगों को होता है जो ज्यादा खाते हैं. But when you fast, लेकिन जब उपवास करते हैं you maintain pressure of your blood. आपका अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है 80/20 हो जाता है. Do you know also when you fast, लेकिन जब उपवास करते हैं you improve the pumping rate of your heart. अब आपका दिल जिस गति से धड़कता है वो भी अच्छा हो जाता है. The pumping rate of your heart stabilizes. वो धीरे हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है. It मतलब works perfectly. जितना चलना चाहिए ना तेज धड़कता है ना हल्का धड़कता है. Then you start to breathe so well. और आप सांस अच्छे से ले पाते हो. Do you know that when you fast, आपको पता है कि जब उपवास करते हो you reduce the level of cholesterol? आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाता है. You reduce them. कम हो जाता है. Because sometimes many people eat lots of fats. You eat fast food, you eat fried food, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोस. and sometimes that gives your heart a lot of work. और उससे क्या होता है क्योंकि अपने शरीर को इतना भर लेते हैं तो हमारे दिल को ज्यादा धड़कना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. Amen. So when you fast, तो जब उपवास करते हैं you get a lot of things. आप बहुत सी चीजों से अलग हो जाते हैं. Apart from what I'm just coming to the religious part of it, but I'm just telling you the physical thing that you will get. भाई कह रहे हैं कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका आध्यात्मिक रूप से क्या फायदा होता है, लेकिन पहले समझो कि शरीर को क्या फायदा होता है उपवास करने का. Do you know that when you fast, जब उपवास करते हैं you lose weight? आपका वेट भी कम हो जाता है. Before you start fasting, check your weight. उपवास शुरू होने से पहले अपना वेट चेक करें. Even if you fast like 4 to 5 hours, you must lose 1 to 2 kg. अगर आप पूरे दिन में 4 से 5 घंटे का भी एक लंबा उपवास रखते हैं तो भी आपका 1-2 किलो तो कम हो ही जाता है. Because you give your body a break. क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक दिन में नहीं लंबे वाले फास्ट में It's like an engine, working 24 hours. क्योंकि हमारी बॉडी में हम थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को डालते रहते हैं तो बॉडी का इंजन चलता ही रहता है. So you give it a break. तो उसको हमने ब्रेक लगाया है. Or else your body will become so hot और आपका जो शरीर है वो गर्म होगा and it might explode. क्योंकि वो चलता रहता है खाने की वजह से तो फट भी सकता है कभी. That is why sometimes some people go to the hospital. इसलिए कई बार लोग ज्यादा खाने की वजह से भी अस्पताल में जाते हैं. Amen. Amen. So when you fast, you have lot of advantage to gain. तो जब उपवास करते हो उपवास के बहुत सारे फायदे हैं. Do you know that when you fast, you increase the level of your insulin? आपको Yes. आपको The पता है energy, the strength that you आपको get. पता है कि आपका शरीर के अंदर जब भी कोई खाना डाइजेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है और जब आप फास्टिंग करते हो तो इंसुलिन ज्यादा निकलता है, मतलब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है. Yes, because sometimes when you pack yourself so much, some things they don't have strength. They are so weak. You are so weak to do something because of what your body have no क्योंकि rest. आप जब ज्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन निकालना पड़ता है और खाते खाते इंसुलिन कम पड़ जाता है
और बॉडी इतना खाना डालती है, इतना खाना डाले जा रहा है, तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता और इसलिए लोगों को डायबिटीज होता है। So when you fast, क्योंकि जब आप उपवास करते हो you gain a lot physically. तो आप शरीर में बहुत एक्टिव हो जाते हो, But that is not the motive of your fasting. लेकिन उपवास करने का ये मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पतला होना है या मुझे वेट रिड्यूस करना है। Have any of you say, I'm doing fasting because I want to increase my insulin? I'm doing fasting because I want to do this. Nobody does that, right? अगर आप में से कोई भी उपवास करता है तो ये नहीं कहता हो कि अरे मैं उपवास कर रहा हूँ ना, मेरा बॉडी में इंसुलिन ज्यादा निकलेगा इसलिए उपवास कर रहा हूँ, या मुझे वजन घटाना है इसलिए उपवास कर रहा हूँ। Sometimes we engage in fasting as Christians because we want to get something from God. We have some problem that we are asking God to do for us. अधिकतर हम मसीही लोग तब उपवास करते हैं जब हम कहते हैं कि नहीं मुझे अपने जीवन में कुछ चाहिए, चंगाई चाहिए, पैसा चाहिए या कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर से मांग रही हूँ नहीं मिल रहा, चलो उपवास कर लेते हैं। Pastor will tell us, let's fast पास्टर भी कहते हैं चलो उपवास करते हैं so that God will hear ताकि us. परमेश्वर सुने। So when we fast, we take our Bible and we pray. तो जब हम उपवास करते हैं तो अपने अलग से समय निकालते हैं, बाइबल निकालते हैं और प्रार्थना करते हैं। So we don't even know that we are gaining from the two sides. हमें ये नहीं पता चलता कि उपवास में हमें दो फायदे होते हैं, The physical part of it, शरीर भी सही हो जाता है, God is doing something in our body. परमेश्वर हमारे शरीर को भी चंगा करते हैं, And the spiritual part of it, और आत्मिक रूप से भी हम चंगे हो जाते हैं। God also is going to hear परमेश्वर से भी us. सुनता है। Amen? Amen. So that makes fasting so important in our life. इसलिए हम सब मसीहियों के जीवन में फास्टिंग मतलब उपवास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So I encourage you, sometime once in a month at least, make sure that you take up fasting. तो हमारे भाई कह रहे हैं इसलिए हर कोई हर हफ्ते एक बार फास्ट करना चाहिए। So spiritually, that what we say, which everybody, this is the reason that we Christians, we fast. It's because of the spiritual gain that we expected from God. आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, आप YouTube पे भी देखेंगे बहुत लोग उपवास की बात करते हैं कि हर कोई आत्मिक रूप से बढ़ना चाह रहा है। We pray because we want urgent attention from God. हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर आ जाए। But the question is, पर प्रश्न ये है why fasting? कि जब प्रार्थना सब कुछ हो सकता है तो उपवास करें ही क्यों? We ये can क्वेश्चन। pray, right? जब प्रार्थना करके सब मिलता है, मांगो तो दिया जाएगा, तो We उपवास can क्यों kneel down करें? and pray. We can kneel down and pray. God said pray. घुटनों पर आके प्रार्थना कर सकते हैं, लेट लेट के प्रार्थना कर सकते हैं, तो उपवास The क्यों question करें? is, why also fasting? तो उपवास क्यों करना चाहिए? That is the question. Why fasting? क्यों उपवास? You mean God can't answer our prayers? क्या मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकते उसके बिना? It doesn't mean that when we pray that God is not listening. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। But let me tell you something. पर आपको एक चीज बताते हैं, Fasting is like उपवास का मतलब क्या है? Korea. Korea. You know Korea? Like Paso. When you want to sell Paso. Paso, when you want to package Paso and sell by flight. जब कोरियर करते हैं, कुछ पार्सल भेजते हैं, उसकी तरह है उपवास। When you go to the office of those that are passing your goods to another country, जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं कि अरे आप दूसरे देश में हमारा पार्सल भेज दो, they will ask you, वो आपसे क्या पूछते हैं? do you want express एक्सप्रेस कोरियर करवाना है or do you don't want या non-express? नॉर्मल वाला कोरियर कराना है? You say, I want non-express. आप बोलते नहीं नहीं नॉर्मल वाला कर दो। They will tell you your goods will reach in 2 months. ये तो ठीक है, अभी जून चल रहा है, आपका अगस्त तक पहुंच जाएगा। Or they will tell you, even we don't even know when it's और going to उसके reach. बाद भी कोई गारंटी नहीं है, देखो ज्यादा टाइम भी लग सकता They है। will tell you, keep tracking it. और आप ट्रैक करते हैं ना, फोन में आपको लिंक दे देंगे। But when you say, I want express, लेकिन आप कहते हैं भैया फिर एक्सप्रेस वाले में क्या फायदा होता है? I want it to reach in 1 day. अरे आज भेज रहे हो कल पहुंच जाएगा। They will refer you on to another office. अरे आज भेजेंगे दूसरा ऑफिस अभी भेज रहे हैं, कल तक पहुंच भी जाएगा। And you will see the fastness. हम देखते हैं अरे इतना जल्दी, यही वाला कर दो भैया। Where they will stamp it immediately. अरे जल्दी ठप्पा लगाओ भेज दो। And before you leave, they already start sending them. जब तक आप ऑफिस से बाहर नहीं आते उससे पहले तो वो ऑफिस से बाहर पहुंच जाता है। That is exactly what is called fasting. Because when you use non-fasting avenue to send your courier, क्योंकि अगर आप एक
बिना उपवास के अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, they feel less serious. तो ठीक है पहुंच ही जाएगी, आ रही धीरे धीरे प्रार्थना। They feel less concerned. ऐसी पोस्ट ऑफिस वाले भी सोचते हैं, ठीक है पहुंच जाएगा धीरे धीरे पार्सल। Sometimes you may lose your parcel. कभी कभी तो पार्सल पहुंचता नहीं, टूट जाता है, फूट जाता है या खो ही जाता है। But when you certify your parcel, लेकिन जब आप उसके ऊपर एक्सप्रेस का ठप्पा लगवा देते हैं give me gold before anybody receives that. कि किसी के पहुंचने से पहले मुझे पहुंचनी चाहिए, Because they will send code in your phone to confirm that you have received that. क्योंकि वो कहेंगे कि अच्छा पहुंचेगा तो कोड भी आपके पास आएगा, वो देख लेना, Because it is certified. क्योंकि उसमें सर्टिफाई हो गया है। They take proper care of it. क्योंकि आप पैसे भी भरोगे और तो उसको बहुत ध्यान से वो पहुंचता है, And you receive it so urgently. तो आप उसको एक दिन में पहुंचा भी देते हो। So prayer is like non-express. तो प्रार्थना मतलब कि नॉन एक्सप्रेस का पार्सल, But when you are fasting, लेकिन उपवास का मतलब है you want it express. एक्सप्रेस स्पीड वाला पार्सल। Amen. आमीन। And it has different benefits more than only when you take prayer. और अगर आप प्रार्थना करते हो उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको उपवास में होता है। So what do we gain तो अब when हम we ये बात करते fast? हैं कि उपवास करने से आखिर हमें फायदा होता क्या है? What do we gain when we fast? क्या फायदा होता है जब हम उपवास करते हैं? First is क्या फायदा है? to strengthen your prayer. आपकी प्रार्थना और मजबूत हो जाती है। Amen. आमीन। To strengthen your prayer. आपकी प्रार्थना मजबूत हो जाती है, So that your prayer becomes express. आपकी प्रार्थना भी एक फुल स्पीड से पहुंचती है। Most people will say, oh, I have been praying for years. कई लोग कहते हैं अरे इतने सालों से तो प्रार्थना It कर रहा seems हूँ, like God don't want to answer my prayers. लगता है परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब देना नहीं चाहते। But you will see some people who say, कुछ लोग कहते हैं God have done it for me. परमेश्वर ने मेरे लिए तो सब कुछ किया है I am आज so तक, grateful. मैं तो बहुत खुश हूँ। So how did you do कहते that? हैं तुम्हारे सब कुछ किया है, कैसे किया? So fasting makes your prayer to be expressed. तो प्रार्थना अगर आपको फास्ट स्पीड से पहुंचानी है तो उसके लिए उपवास करें। Amen. हमें It makes your prayer to become so urgent. आपकी प्रार्थना बहुत अर्जेंट रूप से परमेश्वर के पास पहुंचती है। You make it certified that God, this is a certified letter to you. आपने ठप्पा लगा दिया परमेश्वर एक्सप्रेस वे की प्रार्थना आ रही है, जल्दी लगा दो। And God will keep it परमेश्वर भी देखता है फटाफट पहुंच गई है तो the line to attend परमेश्वर express. फटाफट उसको डील कर लेता है। Amen. हमें Let's go to Ezra chapter 8. The book of Ezra chapter 8 verse 23. बोलते हैं एजरा की किताब Ezra chapter 8 verse 23. Ezra chapter 8 verse 23. 8 का टेक्स्ट 576 पेज नंबर 576 Ezra chapter 8 verse 23. 8 का टेक्स्ट पुराना नियम। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। Amen. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer. Amen. Entreated. That is the word NJKV used. Entreated. यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से उसने हमारी सुनी, हमारी He said we fasted and we entreated. कि उन बाइबल में लिखा है कि हमने उपवास किया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना And we begged और हमने मांगा, and we asked God to answer our prayer. परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को जवाब दे दो। When you beg God, when you ask God, please, जहाँ परमेश्वर से मांगते हो कि परमेश्वर प्लीज कृपया करके मेरी प्रार्थना को जवाब दे दो, this prayer needs urgency. और इसका मतलब इस प्रार्थना को आपको अर्जेंटली पहुंचाना है। God, you need to answer me.
परमेश्वर आपको अपनी प्रार्थना का जवाब देना ही पड़ेगा, Because God knows that you are in the express lane. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि भैया इसने एक्सप्रेस लाइन लगाई है, उपवास He किया है, will hear you. तो परमेश्वर जरूर Like सुनेगा। the Bible said today in Ezra. तो बाइबल में क्या लिखा है इस्राएल की किताब He में? said, and we fasted कि हमने उपवास किया, and entreated and begged God for परमेश्वर this. से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। The Bible said He answered. परमेश्वर ने सुना। The Bible didn't say He will answer. He said He answered us. यहाँ ये नहीं लिखा परमेश्वर हमारी सुनेगा, लेकिन लिखा परमेश्वर ने हमारी सुनी मतलब सुन ली। So when you fast, you make that prayer you make it to be expressed. इसका मतलब जब उपवास करते हो अपनी प्रार्थना को एक एक्सप्रेस वे की तरीके से परमेश्वर के पास पहुंचाते हो। And it's very rare for God not to answer. और ऐसा बहुत ही कम होता है कि परमेश्वर आपके उपवास के बाद भी आपकी प्रार्थना का जवाब ना दे। It's very rare for God not to answer that prayer. ऐसा बहुत ही मुश्किल है, मैं तो कि नामुमकिन है कि परमेश्वर आपके उपवास के बाद भी प्रार्थना का As जवाब। long as you follow the rules of fasting. अगर आप उपवास के नियमों का पालन कर रहे हैं, The rules of fasting that was written in Matthew chapter 6, मत्ती के सुसमाचार के 6 अध्याय में लिखा है कि हम verse उपवास 16 to 18. कैसे करना है। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो Matthew chapter 6, verse 16 to 18. Matthew chapter 6, verse 16 to 18. मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 16 वचन से 18 वचन तक नया नियम पेश करना है। मत्ती का सुसमाचार जल्दी खोलो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Amen. As long as you follow the rules of fasting. अगर आप उपवास के नियमों का पालन कर रहे हैं, The Bible here is saying, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites बाइबल कहती है कि कपटियों की तरह मत बनना जब तुम उपवास करो, with a sour countenance. कि जब उदास रहते हैं, दुखी दिखाते हैं अपने आप को। For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. वो अपना मुंह उदासी रखते हैं ताकि लोग देखें, अरे क्या हुआ, अरे उपवास पे हूँ ना। Assuredly, I say to you, they have had their reward. तो बाइबल परमेश्वर कह रहे हैं कि ठीक है, उनको तो उनका रिवॉर्ड मिल गया, इनाम मिल गया, लोगों ने उनकी वाह कर दी। Many people will say, oh, I used to fast. कई लोग कहते हैं पहले उपवास तो रखता But था, still, my prayer, God have answered my prayer. प्रार्थना का तो जवाब कभी मिला ही नहीं। I fasted last 2 months. पिछले 2 महीने उपवास किया मैंने, But God don't answer my prayer. परमेश्वर ने फिर भी जवाब दे दिया, Because you have already had the reward of the fasting. क्योंकि तुम्हें अपने उपवास का इनाम पहले ही मिल चुका है धरती पर। Because their face, you know they are fasting. क्योंकि शक्ल से दिखता है उपवास पे है बेचारे। They say, I never eat food now since आज 2 खाना नहीं hours. खाया नहीं, You उपवास। don't know I'm fasting. पता नहीं उपवास पे वो नहीं खाऊंगा। You don't even tell anyone that you are fasting. आपको किसी को बताना ही नहीं है कि आप You don't need उपवास। to complain to people that you have never eaten food. आपको लोगों को शिकायत करने की जरूरत नहीं, अरे मैंने खाना नहीं खाया ना। You don't need to tell people I'm doing this fasting because my pastor asked us to do fasting. और ये भी बोलने की जरूरत नहीं मैं उपवास में हूँ, पास्टर ने कहा है ना इसलिए So to उपवास। put that face that people will know, oh, are you fasting? कई लोग शक्ल ही बनाए रखते थे, उपवास पे हो क्या, शक्ल उदास दिख रही है। When they see food, they say, you are tempting me with this food. You are tempting me. You know I'm fasting. और उनके सामने खाना पता है ना मैं उपवास में, मेरे सामने इतना टेस्टी खाना क्यों रखा है, मन कर रहा है खाने का। So they already make people to know they are fasting. तो लोगों को पता लग ही जाता भाई ये उपवास है बता। And when people, pass food around them, they will start to blame them. और जब उनके आसपास खाना घूमता तो वो उनको शिकायतें करते, मेरे आसपास खून मत खाना मत नहीं करो क्योंकि मैं You know उपवास I'm fasting and you are pushing food and you पता are, नहीं जब मैं उपवास हूँ मेरे आसपास खाना क्यों लेकर आ रहे हो तुम। they shouldn't even know that you're fasting. उन लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि आप उपवास When हैं। food crosses, अगर आपके आसपास से खून You know, खाना निकल भी जाए, you pretend as if you see nothing. आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि अरे मैं तो कुछ देखा है। That is what the Bible says. बाइबल यही बताती है, Everything have rules. हर एक चीज का एक नियम होता है। When you follow the rules of fasting, जब आप उपवास के कानूनों का पालन करते हैं you always get the reward from तो God. आपको हमेशा परमेश्वर से इनाम मिलता है। Amen. आमीन। Verse 17 says, 17 वचन में लिखा है, but when पर जब
But you, when you fast, जब तुम उपवास करो anoint your head and wash your तो face, जाओ अपना मुंह धो और अपने सिर पे तेल लगाओ so that you do not appear to men to be fasting, ताकि आप लोगों को उपवास करते दिखाई ना दो, but your Father who is in the secret place, लेकिन जो तुम्हारा पिता गुप्त में है and your Father who sees the secret will reward you openly. वही तुम्हें दुनिया में प्रतिफल देगा। Amen. आमीन। You wash your face, अपना मुंह धो, you oil your face. अपने अच्छे से जो भी तैयार होते हो, Let people don't know what you are doing. लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि आपके जीवन में क्या है। You smile. आप स्माइल करो, Don't tell me by yes, I have eaten. अब ये बोल दो मैंने खाना खा लिया है, Nobody will know you are fasting किसी को पता नहीं चलना चाहिए उपवास में हो, because you are doing it for God. क्योंकि आप परमेश्वर के लिए उपवास कर रहे हो, लोगों के लिए। You are not doing it so that pastor will know that I'm following the path of the fasting. तो आप वो इसलिए नहीं कर रहे कि पास्टर को पता चल जाए कि अच्छा ये उपवास कर रहा है। You know, most people want someone to recognize what they are doing. कई लोग चाहते हैं कि वो लोग जाने कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। And they will say, oh, Pastor, I think you are still fasting also. Are you fasting? कई लोग कहते हैं पास्टर आप उपवास पे हो क्या? मैं तो उपवास हूँ, आपने भी रखा है क्या? They just want to remind them to tell Pastor that fasting, we are doing it also. तो पास्टर बोलते हैं पास्टर आप उपवास पे मैंने भी रखा है, ऐसे लोग बताना चाहते हैं। So you are not doing it so that somebody will know that you are fasting. तो हम लोग उपवास इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोगों को पता चले कि हम उपवास कर रहे हैं, But you and your God knows. लेकिन आपके और आपके परमेश्वर के बीच में रहना चाहिए You are उपवास। doing it for God आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, and not for anyone. लोगों के लिए नहीं, So that God will reward you with sin. ताकि Amen. परमेश्वर आपको प्रतिफल दे। So when you pray, when you fast, तो जब उपवास करते हैं you have that express for God to answer your तो prayer. परमेश्वर अपनी प्रार्थना को एक्सप्रेस में से आंसर करता है। Amen. आमीन। Then secondly, another importance of fasting is this: और दूसरा महत्वता क्या है उपवास की? to seek God's guidance. परमेश्वर की अगुवाई को देखना, ढूंढना God, which way? कि परमेश्वर आखिर मैं इस समय अपने जीवन में इस जगह पे खड़ा हूँ, आखिर कहाँ जाऊँ? that particular time you left everything. You know that is that. आपको पता कि जीवन में जो कुछ चल रहा है सब छोड़ के परमेश्वर आप बताओ कहाँ चाहते हो, मैं कहाँ जाऊँ? Then you focus only in one place. आप सिर्फ एक ही जगह पे ध्यान लगाते हो, That is why fasting is important. तो उपवास बहुत जरूरी है। Because you can't be addicted to Facebook. आप उपवास करते हुए फेसबुक नहीं खोल सकते। And also you want God to hear you. आप चाहते हैं कि आप फेसबुक भी 2 घंटे चला रहे हो, परमेश्वर की प्रार्थना का Then जवाब how are you नहीं going दे। to manage it? ऐसा नहीं हो सकता। It's like you are with phone like this. जैसे कि आपके इस समय अपने फोन है, You are chatting your friends अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहे हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पे and he's replying. और रिप्लाई कर रहे हो। Okay, please wait one. Let me answer God, I need this. But wait, God, wait. Let me answer my friend. परमेश्वर भी बोल रहे, परमेश्वर हम कुछ कह रहे थे, हाँ। So you be confused what to do. आपको कंफ्यूजन है कि दोस्त से बात करो कि परमेश्वर से बात करो। So that is why when it is so important, तो उपवास बहुत जरूरी है। you have to leave those things. आपको इन चीजों को, फोन को छोड़ना ही Those पड़ेगा। distractions, be it food, be it anything, चाहे that वो is going फोन to हो, distract that time you want to talk to God, you have to keep it aside. चाहे वो फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे खाना हो, हर एक चीज को साइड कर देते हो आप उपवास। And when God sees that seriousness और in जब you, परमेश्वर कहते हैं कितना गंभीर है मुझे लेकर, obviously He will make Himself तो available. परमेश्वर क्यों नहीं आपकी प्रार्थना का जवाब देगा? Yes, He will make Himself वो available. जरूर अपने आप को फ्री रखेगा आपके लिए, Because He knows that all your hearts, all your mind, all your body now is dedicated to क्योंकि God. परमेश्वर को पता है कि भाई इसने सिर्फ अपना दिमाग, अपना समय, अपना शरीर सब कुछ अलग कर दिया है मेरे लिए। Fasting helps you to look for God and see which way is best for your life. उपवास में आप परमेश्वर को ताकते हो और कहते हो परमेश्वर बताओ मुझे क्या करना है आगे जीवन में। As we can see in Judges, जैसे हम देखते हैं Chapter न्यायाधीश 20. किताब 20वें अध्याय में, Judges chapter 20 from 26 to 28. यहोशू किताब के बाद चैप्टर Judges chapter 20. पेज नंबर पुराना देखो। Judges chapter 20 from 26 to 28.
320 पेज नंबर पुराना नियम न्याय की किताब 26 से 28 वचन। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा संदूक वही था और पीनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकले या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। Amen. If you look at verse 27, it nailed it down. Verse 27. Look at that place. अब 27वां वचन देखिए। This is the children of Israel इजराइल के बच्चे after they fasted. उपवास के बाद And God sees their hearts परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा and knows that they are fasting really in truth. और वो देख रहे थे परमेश्वर की उपवास बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये। They use that opportunity to acquire something from God. उन्होंने उस समय का इस्तेमाल किया परमेश्वर से कुछ पाने के लिए। In verse 27, it says, 27वें वचन में so the children of Israel इजराइल के बच्चे inquired of the Lord what they don't know. उन्हें क्या नहीं पता था, What they don't know is about to happen. उन्हें नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। They say, God, please tell us. उन्होंने बोला, परमेश्वर प्लीज बताओ क्या होने वाला है हमारी लाइफ में। Guide us so that we don't प्लीज हमारी इंक्वायरी करो ताकि हमें पता चले go the wrong way. कि हम गलत रास्ते पे ना चले जाएं। It gives us guidance from God. परमेश्वर हमें सही अगुवाई करो। You can acquire something you don't know. कुछ ऐसा अपने जीवन में जो नहीं जानते अगर आप जानना चाहते हैं, If your life is blurred, if you can't see the way you are अगर going, आपको लगता है कि अपने जीवन में आप आगे बढ़ तो रहे लेकिन कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, it's only through fasting. तो उपवास के द्वारा उसे जान सकते हैं। They inquire because the Bible said that they are confused about the ark of the covenant of God. And they inquire about the ark. यहाँ लिखा है उस समय परमेश्वर का वाचा संदूक वही था। If you look at verse 28, the last verse, it says, I'm reading the last part. And the Lord said, go up for tomorrow. I will deliver them unto 28 के आखिर में you. लिखा, यहोवा ने कहा चढ़ाई कर क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। They are confused about the ark. वो डर रहे थे कि अरे क्या होगा आगे, If they go, whether they are going to capture them or not. अरे हम आगे जाके इनको मार भी पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। So that let's not avoid any mistake. तो अब हमें कोई गलती नहीं करनी है इस जगह पर। Let God speak. परमेश्वर को बोलने दो। But God said, परमेश्वर ने कहा, don't worry. तू चिंता मत कर, By tomorrow, कल तक I will give it to you. वो लोग तुम्हारे हाथों में होंगे। Amen. आमीन। This is what fasting can do. उपवास ये कर सकता है। Without fasting, God can't give them that express. बिना उपवास के परमेश्वर जल्दी में जवाब नहीं देते। Maybe they were thinking, oh, it's going to take 1 year for God to answer. कई बार लोग तो अरे परमेश्वर तो 1 साल में जवाब देंगे। Oh, you are saying we have inquired. I don't know whether God is going to take months for Him to answer. अरे मैंने कितनी प्रार्थना कर, लगता है महीने तो लग ही जाएगा प्रार्थना का जवाब पाते But पाते। they were surprised. लेकिन वो तो हैरान हो गए। God said, by tomorrow, उपवास करने के बाद परमेश्वर ने बोला कि कल ही He said, I will deliver वो लोग तुम्हारे हाथों में होंगे। in your hands. Amen. That is the power of fasting. ये Amen. उपवास का सामर्थ्य। Let's go also the importance of fasting number 3. तीसरे उपवास के महत्वता पे जाते हैं। To express our grief, ग्रीफ, pain, हम अपने दर्द को भी खत्म करना है, उसके लिए भी उपवास करें। to express when we are not happy, अगर हम खुश नहीं हैं, when we felt that we have wronged someone or we हमें have लगता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ गलत हुआ है, किसी ने कुछ गलत or किया we है, have done something that is not good, या मैंने कुछ गलत किया है जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं, we say, no, I am not going to eat, I'm not going to do anything, और आप बोलोगे I'm going नहीं, to focus on my God. मैं कुछ नहीं अब खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, मैं परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाऊंगी। Let's go to 1 Samuel. 1 Samuel chapter 31. 1 Samuel chapter 31. Take care of this, you will start to love fasting. Amen. 1 Samuel chapter 31, from verse 11 to 13. 1 Samuel chapter 31.
1 Samuel 31. 1 Samuel 31 from 11 to 13. First Samuel 31, chapter 31 from verse 11 to 13. हम खोलते पहला शमूएल का 31 का 11 से 13। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले गए और वहीं फूंक दिए। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। Amen. When Saul died, he fasted for 7 days. जब शाऊल मरा तो लोगों ने 7 दिन तक उपवास किया। Because they are mourning, they are in grief, क्योंकि वो दुख में थे, they are in pain. दर्द में थे। So fasting also serves to lay our hearts to God, to console us, and to be with us in times of pain. तो उपवास के द्वारा आप अपने दुख से भी दूर होते हैं, परमेश्वर में ज्यादा करीब हो जाते हैं। There are many of us who have lost our beloved ones. बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, But to forget that sin लेकिन उस दर्द को भूलने के लिए becomes so hard for हमारे us. लिए बहुत मुश्किल होता है। Many people sometimes take their life also because they can't bear losing their dear ones. कई लोग तो अपने प्रियजनों के मरने के बाद खुद भी मरने की सोच लेते हैं, But through fasting, पर उपवास के द्वारा we can lay that pain to God हम वो दर्द परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं and ask God to heal और us. परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर में चंगा करो। When Saul died, तो सौल मरा, they buried him. They couldn't bear the pain. वो दर्द लोग संभाल नहीं पा रहे थे, They went into fasting for 7 उन्होंने days उपवास किया so that God will take care of them. ताकि परमेश्वर उनका ध्यान दे। It's very difficult. तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Imagine someone you are staying with all your life आप सोचा किसी के साथ पूरा जीवन भर रह रहे हैं and you saw the person dying. और आप देखते हैं कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, You know, that memory is very hard to move away from you. तो उस याद को भूलने के लिए If you have experienced a loved one die in your arms, अगर आप देखते हैं कि कोई अगर इंसान मर गया all your life you will live with that pain. तो दर्द के बिना मुश्किल होता है। It takes God's grace to परमेश्वर का take care of you. अनुग्रह चाहिए उस जगह से बाहर निकलने। Many people today are suffering from high blood pressures आज बहुत सारे लोगों को बीपी बहुत हाई रहता है because of the shock क्योंकि उन लोगों को शॉक लग जाता है of the loved ones that died. उनके प्रियजनों की मृत्यु के बाद। So, with the power of fasting, लेकिन उपवास के द्वारा we can be able to overcome them. हम उससे बाहर आ सकते Amen. Another one is through fasting, हैं। उपवास के द्वारा we seek deliverance and protection from God. Amen. परमेश्वर के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। As written in 2 Chronicles, दूसरा गिनती किताब 2 Chronicles chapter 20, from verse 1. दूसरा इतिहास 2 Chronicle chapter 20. 2 Chronicle chapter 20 from verse 5 to 12. Second chapter 20 वर्ष from verse 5 5वें वचन से to 12. 5 से 12। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 5 से 12, पेज नंबर 542 पुराना नियम। तब यहोशाफात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे मेरे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश की सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इस पे बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और या कोई आपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा।
और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तू इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने लग गया, वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश कर दिया। देख, वही लोग तेरे हुए अधिकारी इस देश में जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहा है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारे तो बस नहीं चलता, और हमें सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी। Amen. The Ammonites, they came to kill Josaphat. तो यहोशाफात को मारने के लिए अम्मोनाइट्स आए, They came to kill them. उसे मारने के लिए आए। They said, we have no guns, वो कहते हैं, हमारे पास कोई बंदूकें नहीं है, we have no armor to fight them, लड़ाई करेंगे कैसे? we have no chariots or horses, कोई भी घोड़े, कोई भी रथ है ही नहीं हमारे पास। but लेकिन fasting and praying. पर हम उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। They knelt down and they started fasting. उन्हें घुटनों पे आके उपवास शुरू कर दिया I said, God, you can fight for कि us. परमेश्वर आप मेरे लिए लड़ सकते He हैं। said, God, it is only you that will deliver us from the परमेश्वर hands आप of ही the हैं जो Ammonites. मुझे शैतान की और दुश्मनों के हाथों से बचा सकते हैं। They went into fasting. उपवास में गए, That was what the Bible said ये to बाइबल us. बताती है। Look at verse 12. 12वें वचन में लिखा It है, said, Oh, our God, हे हमारे परमेश्वर, will you not judge them? क्या तुम उनका न्याय नहीं For करेंगे? we have no power against this great multitude that is coming against us. क्योंकि जो भीड़ हमारे सामने चढ़ाई कर रही है, Nor do we know what to do, हमें नहीं सोचता कि हमें क्या करना चाहिए, but our eyes are upon you. पर हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी है। It's the God of deliverance. कि परमेश्वर छुटकारा देता है। When you read down, अगर आप ये पढ़ते हैं, you look at what happened. आप देखेंगे क्या हुआ। You see how God delivered them. आप देखिए परमेश्वर कैसे छुटकारा करता You see है, how God saved them. कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें बचाया। Sometimes when people threaten us, जब लोग कई बार हमें डराते हैं, sometimes when the powerful say they are going to eliminate us, और जब कोई तंदुरुस्त व्यक्ति हमें कहते हैं कि हम तुम्हें निकाल देंगे या डरा देंगे, your defense, आप कैसे बच सकते हैं? your gun and bullets आपकी बंदूकें क्या है? is fasting. उपवास। You put God in आप fasting. परमेश्वर को आगे रखते हैं। That is what fasting can do for you. उपवास आपके लिए यही कर सकता You है। send an express letter to God. आप परमेश्वर को एक्सप्रेस लेटर लिखकर भेज रहे हैं Dear God, कि मेरे प्रिय after परमेश्वर, my life, वो मेरे जीवन देना चाहते हैं, it is you आप ही हैं that I hope. जिसे मेरी आशा छुपी हुई है। It is you that I depend. आप ही पर मैं भरोसा रखती हूँ। Is there anything you cannot do? कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। That is what we pray today. आज हम उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। And their dependence on God, और उनका निर्भरता परमेश्वर their पर, hope and faith in God, और परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं, touched God so much. परमेश्वर के हृदय को छूता है। They say, God, in you, and we have nothing. वो कहते हैं परमेश्वर मेरे पास आप ही हो और कुछ नहीं है। They say, God, look at the great multitude. आप देखो कितनी भीड़ मेरे सामने खड़ी है। They have come to destroy वो आए us. हैं मुझे मारने के लिए, But our hope is in पर you. मेरी उम्मीद तो आप में है। Amen. आमीन। So fasting delivers you from the hands of the enemy. उपवास आपको शैतान के हाथों से निकाल देता So है। when you fast, you protect yourself, your destiny, your life, and your family. जब उपवास करते हो, ना कि सिर्फ अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने मकसद को, अपने परिवार तक को बचा लेते So हो। it's a package from God. तो ये पूरा पैकेज होता है परमेश्वर की ओर से आपके लिए। Amen. आमीन। The fifth, what we पांचवा get from फायदा fasting is उपवास का to express our repentance and return to God. अगर हम पश्चाताप अपना करना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं, उसके लिए Let's go to 1 Samuel chapter 7 verse 6. पहला शमूएल 7:6। First Samuel chapter 7 verse 6. 336 पेज नंबर, पुराना नियम 7 का 26 वर्ष। Yes, 6 verse 7. So
1 Samuel chapter 7 verse 6. तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा से इस्राएलियों का न्याय किया। आमीन। Amen. So they gathered together at Mizpah, drew water, and poured it out before the Lord. And they fasted that day and said, there, we have sinned against the Lord. And Samuel joined the children of Israel at Mizpah. Repentance. पश्चाताप। We tell God how sorry we are. That's what fasting can do for you. उपवास में परमेश्वर को बोल सकते हैं कि आप कितना पश्चाताप कर रहे You हैं। know, there are sins that we have committed, we have even forgotten those sins. बहुत सारे पाप तो ऐसे भी जो हम करके भूल भी गए। There are some heinous crimes that we have done in life. अपने जीवन में कई हमने बड़े और गंदे और घिनौने पाप किए हैं। You know, that blocks everything that is about to come to और आपके us. जीवन में जो आशीष परमेश्वर डालने वाले हैं वो पाप उन्हें रोक देते हैं। Most people don't know. बहुत से लोग नहीं जानते। There is something that you will do in life. कुछ अपने जीवन में जो आप करने वाले हैं It will keep affecting you. ये बार-बार आपको परेशान करता रहेगा। It will keep affecting your prosperity. आपके उन्नति को परेशान करता It रहेगा। keeps affecting your future. आपके भविष्य खराब करता You रहेगा। work so hard, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं like other people, और लोगों की तरह, but you see no fruit of your hard फिर भी आपको work. दिख रहा है कि मेहनत कोई फल नहीं आ रहा। You keep wondering what is happening. आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है ये, But you know that fasting can clear those लेकिन things. उपवास उन चीजों को साफ कर सकता When you fast, है। जब उपवास करते हैं and God can see you and say, oh, I am canceling this from him. परमेश्वर कहते हैं कि अच्छा अब इसने उपवास किया है तो चलो इसके पापों को कैंसिल कर देता हूं। Amen. We use it as express and say, God, we are sorry. हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं उपवास के द्वारा। Another one is to humble oneself before God. और इसके बाद अपने को विनम्र करने के लिए भी हम उपवास करते हैं। 1 King chapter 21. पहला राजाओं का 21वां अध्याय। 1 King 21 from 27 to 29. 1 King chapter 21. First King 21 from 27 to 29. 443 पेज नंबर 443 पुराना नियम 21वां अध्याय From 21 from 27. 27 से। Yeah, verse 27 or from 20, chapter 21 from 27. एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट के ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तुमने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। Amen. Fasting can help God to see the humility in you. उपवास के द्वारा परमेश्वर को अपनी विनम्रता दिखा सकते हैं। Humbleness. God loves him so much. परमेश्वर जो लोग विनम्र होते हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं। But unless you have a one-on-one conversation with God, लेकिन जब तक हम परमेश्वर से एक-एक करके बात नहीं करते, then only God can see your heart. परमेश्वर तभी आपका हृदय देखते हैं। Prayer, yes, we can pray. हाँ ठीक है, हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, But our prayer is not 100% dedication to God. लेकिन प्रार्थना में हम परमेश्वर को 100% समर्पण नहीं करते। But when you fast, लेकिन हम उपवास करते हैं, you give all attention to हम God. 100% परमेश्वर को अपना पूरा टेंशन देते हैं। Amen. God saw the heart of Ahab. परमेश्वर ने अहाब का हृदय देखा। Do you know that Ahab was a murderer? आपको पता है अहाब खूनी था, He killed someone. उसने किसी को मारा, He killed Naboth. उसने नाबोत को मारा। Not only killing, सिर्फ मारा ही नहीं, he took the property of उसकी Naboth. सारी प्रॉपर्टी भी ले ली। If it is in the world this today, he will be hanged or go to life imprisonment. अगर आजकल के समय में किसी ने खून किया होता तो शायद उसको फांसी चढ़ा देते। But when Elijah came पर जब एलिय्याह आया and said to Ahab, और अहाब से कहा, you are a murderer, तू तो खूनी है, you have killed, तूने मारा है,
But remember, he's a king. उसने बोला राजा। He has the right to arrest Elijah अब ये ना भूले उस समय अहाब एक राजा था, वो एलिय्याह को पकड़ सकता था, and put him in jail. उसे जेल में डाल सकता था। He is the #1 citizen. वो तो राजा था वहाँ का। But God was watching. पर परमेश्वर देख रहा था। God was looking to see his reaction. परमेश्वर देख रहा था क्या एलिय्याह की बात सुन के अहाब कैसे रिएक्ट करता है। God was looking whether he's going to take pride in sin. परमेश्वर देख रहा था कि क्या ये घमंड करता है अपने राजा होने का या पछतावा करता है। People used to see pride when they do something wrong. They're so proud. कई बार आप लोगों को देखिए गलत भी करते हैं और घमंड भी करते हैं गलत करने का। You hit somebody with your car. आप किसी को अपनी गाड़ी से ठोकर मार दो You are so proud. और घमंड करते हैं You still curse the person. कि आपने उसके अंदर डर, जीवन में डर डाला। God was wanting to see the reaction of Ahab. परमेश्वर भी अहाब का देख रहे थे कैसे वो रिएक्ट करता है। And God see the humility in him. पर परमेश्वर ने उसके अंदर विनम्रता देखी। He torn his clothes. उसने अपने कपड़े फाड़े, Shaved off his heads. अपने बालों को मुड़ाया He went into fasting and और mourning. उपवास करना शुरू कर दिया। And God canceled all the costs. और परमेश्वर उसके सारे कारणों को जिसको मृत्यु दे रहा था, All the death sentences which God had given to Ahab. परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं अहाब को मार दूंगा, परमेश्वर ने छोड़ दिया। The Bible said, God said, I will never bring those calamities again. परमेश्वर ने कहा कि वो विपत्तियां मैं तुझ पर कभी नहीं डालूंगा। Through repentance, जिसने पश्चाताप किया, Ahab was able to show God अहाब ने परमेश्वर को दिखा पाया the humility that he कि has. क्या नम्रता उसके अंदर है। Amen. This is what fasting will do to you when you dedicate your life जब आप fast. अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं उपवास में, तो परमेश्वर ऐसा करता है। Amen. Fasting also helps us to express concern for the work of God. Amen. परमेश्वर के काम के लिए भी हम अपने को कैसे दिखाते हैं, उपवास में कर सकते हैं। Nehemiah chapter 1. नहम्याह अध्याय 1 Chapter 1 from verse 3 to 4. Express concern for the work of God. Nehemiah chapter 1 from verse 3 to 4. 580 पेज में 580 पेज में नहम्याह पहला अध्याय का पहला वचन, वर्स 1, चैप्टर 1 वर्स 1। Nehemiah chapter 1 from 3 to 4. तीसरा चौथा वचन। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं उठकर रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के प्रभु सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। Amen. Nehemiah chapter 1 from verse 3 to 4. It says, and they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and the gates are burned with fire. So it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before God of heaven. Amen. Concerned for the work of God. He was weeping and crying because some people, were in pain. कुछ लोग दुख में थे, इसलिए वो रो रहा था और उपवास कर रहा था। Some people who survived. कुछ लोग जो रह गए, Nothing concerned him. उससे उन्हें कोई फर्क नहीं। But God throne him because he's doing the work of God. लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा था, तो परमेश्वर के और करीब ले गया। When you do the work of God, जब परमेश्वर कार्य करते हैं, you take others' problem as your own आप problem. दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझते You हैं। see people as your own brothers and sisters. आप लोगों को अपने भाई बहन की तरह सोचते हैं। That is what the work of God does. यही है परमेश्वर कार्य। And you cannot recognize this unless you enter into fasting. और जब with तक God. उपवास नहीं करता, वे चीजों को नहीं समझ सकते। So fasting helps us to express concern for the work of God. Amen. उपवास के द्वारा परमेश्वर के कार्य की गंभीरता को दिखाते हैं। Amen. Again, it helps us to minister to the needs of others. Amen. और दूसरों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए मदद करता है। Isaiah 58. Isaiah 58 from 3 to 7. यशायाह 58 3 to 7। Isaiah 58 3 to 7. 58
यशायाह 58 Isaiah 58 from 3 to 7. 3 से 7 वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तुमने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते रहते हो, अपने सेवकों से कठिन कामों कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तो उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ और मारे मारे फिरते हुए अपने घर ले आना? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को अपने को ना छुपाना। Amen. You fast for the need of others. आप उपवास करते हो दूसरों की जरूरतों के लिए, You fast so that others will be happy. ताकि दूसरे खुश हो पाए। You fast because you want God to help आप others. चाहते हैं परमेश्वर दूसरों की सहायता करे, इससे उपवास करते In verse 6, हैं। 6 वचन में he said, Is this not the fast that I have chosen परमेश्वर कहते हैं ऐसा उपवास मैंने नहीं चुना to loose the bands of क्या wickedness? बुराइयों के सारे बंधनों को तोड़े। You fast and loose people from bondage. आप उपवास करें और दूसरों को बंधनों से छुड़ाएं, To take away the burdens of people. दूसरों के बोझों को उठाएं To let the oppressed go free. और जो लोग दबे हुए हैं परेशान हैं उनको मुक्त कर दें And to break every yoke. और हर एक बंधन को तोड़ दें। Amen. It is this power that fasting can give to you, यही उपवास का सामर्थ्य जो आपको मिल सकता है so that you can be able to fight for others. ताकि आप दूसरों के लड़ पाएं। And fasting will empower you. It's not, you will never be a pastor to do the work of God. It is when you fast, God has some power given to you that you can be able to liberate the जब आप captive. उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपको एक ऐसा सामर्थ्य देता है जो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। Amen. Another one, the least but not the last, is to overcome temptation and dedicate yourself to God. और Amen. आखिरी पॉइंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे जीवन में कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं, टेम्पटेशन हो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हम उपवास से कर सकते हैं। Matthew chapter 4, मत्ती 4 from verse 1. Matthew chapter 4. यीशु की परीक्षा, मत्ती 4 Matthew chapter 4, from verse 1 to 11. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन 40 रात निराहार मतलब उपवास में रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगड़े पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, मैं तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तब मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। Amen. It gives us the power to overcome temptation. हम परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं उपवास के You द्वारा। know, temptation comes in sweet things and beautiful things. परीक्षा क्या होती है? टेम्पटेशन जो हमें सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। We are not tempted by ugly things. जो चीजें सुंदर नहीं है, गंदी लगती है, बदसूरत होती है, उससे हमें परीक्षा कभी नहीं होती है। That is why God, Jesus, let us to understand today. इसलिए यीशु मसीह आज हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? Temptation comes with beautiful things. टेम्पटेशन या परीक्षा आती है सुंदर और मनभावी चीजों से।
If somebody will offer you money to do something, कोई आपको पैसा दे रहा है कुछ काम करने का, and you'll be thinking, shall I take the आप बोलो money? पैसा लूं कि नहीं करूं, क्या करूं? But you know that you can't do the things. आपको पता है ये कर सकता हूं मैं, You know that somebody is asking you to do something which is not good. आपको पता है पैसा तो मिलेगा लेकिन ये मुझसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो गलत है, Now money comes, लेकिन पैसा जब सामने दिखा, and you'll be thinking, आप shall I सोचते take हो the money and do it? अरे पैसा लेके ये काम कर ही तू क्या? But Jesus has given us लेकिन यीशु क्या बता रहे हैं? to understand that temptation comes with things that is shining आपको समझने की जरूरत है जो चीजें चमकती है परीक्षा उसी से आती and things that are beautiful. है, जो चीजें सुंदर होती है। But he tells us, he reminds us लेकिन बाद में today, क्या बता रहा है? we shall not live by those things. हमें उन चीजों पर नहीं जाना We है। are not going to live by bread alone. हम सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहते। It's not every time food we eat. हर समय खाना ही जरूरी नहीं है। But remember everything that proceeds from the mouth of पर God. याद रखें जो परमेश्वर के वचन पर हम जिंदा रहें। Yeah, the last, and before I conclude, और आखिरी चीज, is to express love and worship for God. Amen. परमेश्वर के लिए प्रेम और आराधना को दिखाने के लिए भी हम उपवास करते हैं। Luke chapter 2, verse 37. लूका का 2:37। Luke chapter 2, verse 37. Luke chapter 2, verse 85 पेज 37. नंबर 85 पेज नंबर है। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके दिन रात उपासना करती रही। Amen. He said, and this woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fasting and prayer night and day. Amen. A woman, 85 years, एक औरत जो 84 साल की थी and a widow. और विधवा भी थी, He did not complain. Now my husband is dead. उसने शिकायत नहीं करी, अरे अब तो मेरा पति मर गया है, There is no one to bring me to the church. अब मुझे चर्च कौन लेके You जाएगा? will always have excuse. हमारे पास हमेशा ही बहाने तैयार होते Now हैं। I'm alone. I am मैं with अकेली हूँ। children. I am with children. बच्चे भी तो हैं, I can't be able to serve God again. कैसे परमेश्वर की सेवा करूं? My children, their works are very heavy. मेरे बच्चों का काम बहुत ज्यादा है, I need attention to them. मुझे ध्यान देना है। I know we can't say now I'm becoming old. अब ये नहीं कह सकते अब तो मैं बूढ़ा हो गया I हूँ। don't have the strength to come to church again. मेरे पास परमेश्वर चर्च आने की हिम्मत नहीं बची, But dedication to love God लेकिन परमेश्वर की सेवा करें, and to worship God. परमेश्वर की सेवा करें। No matter where you find yourself, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर हैं, no matter your age, आपकी एज से फर्क नहीं पड़ता। the Bible says 84. बाइबल बताती है 84 ईयर की एज में लेडी उपवास कर 84 रही है। years. 84 ईयर्स। He said, as long as I breathe, आप बोले जब तक मैं जिंदा रहूंगी और सांसें लूंगी, even if it takes me 1 hour to walk to the church, चाहे मुझे चर्च पहुंचने में 1 घंटा ही क्यों ना लग जाए, she will go. वो फिर भी जाती थी। Dedication, आप देखिए वो कितनी ज्यादा दृढ़ थी। fasting, उपवास, and praying all प्रार्थना। night. This is what you get from fasting. यही चीज आपको उपवास के द्वारा मिलती है। Amen. All this thing I have explained to you or to you today जो हमारे भाई ने आज आप सबको बताया है, is like a bank officer एक बैंक ऑफिसर के जैसे approaching you वो आपके पास आता है and explaining to you all the benefits when you invest. और आपको बताते हैं कि देखो यहाँ निवेश करोगे ना तो बहुत फायदा होने वाला है। When you invest अगर आप निवेश करोगे 20,000, 20,000 रुपए जोड़ोगे it will turn to 40,000. 40,000 हो जाएंगे 2 महीने में। When you invest monthly, अब पैसा जब डालोगे हर you महीने get this return. तो इतना रिटर्न मिलने वाला है। When you do contribution, they call it marub. Contribution, you get money every month. कहते हैं आप पैसा डालो हर महीने आपको पैसा आता रहेगा। So they will explain all these things to you, वो ये सारी चीजें आपको समझाते हैं बैंक ऑफिसर and with great intention and expectation, और कहते हैं अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी you स्कीम है। begin to invest your हम money. कहते हैं ठीक है हम भी पैसा डालेंगे That is true, right? और ये होता भी है, फायदा भी होता है। But today we have tell you the benefits लेकिन आज हम आपको किसका फायदा बता रहे हैं? when you invest in fasting. जब आप अपने आप को निवेश करते हैं उपवास में। People will say because money is not involved, लोग कहते हैं कि पैसा नहीं जुड़ा है nobody will take it serious. तो लोग उपवास को इतना गंभीर नहीं लेते हैं। But we have given you today
लेकिन आज हमने आपको ऐसी चाबी दी है What God has asked us to give to जो you. परमेश्वर ने आपको देने के लिए कहा हमारे भाई के द्वारा। It's left for you to invest them अब ये आपके ऊपर है कि आप निवेश करते हैं कि नहीं and करते see the returns. in और आप देखिए peace. कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है। As you do this, ऐसे आप करें, as you follow what God have told us today, आप देखिए जो परमेश्वर ने आपसे कहा है अगर आप उपवास करते हैं, including you and I. ये आपके लिए भी बोला है और मेरे लिए भी बोल रहे हैं। When I speak to myself also. हमारे भाई कह रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, तो अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि मुझे भी उपवास करना है। It is not only you. आप सही सिर्फ नहीं कह रहे। When I speak, I hear my voice. अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं भी अपनी आवाज सुन रही हूँ। And I know also it's the voice of God. मुझे पता है कि ये आवाज ही परमेश्वर की आवाज है। Let us invest in fasting. तो उपवास करें। Let us join our prayer with तो fasting. आइए प्रार्थना और उपवास में जुड़ जाएं। The return is unimaginable. रिटर्न इतना मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। You can't imagine what will come from it. आपको नहीं पता उपवास से आपको क्या क्या फायदा होने I वाला है। implore you today to invest in it. हमारे भाई कह रहे हैं निवेश करो इसमें। The returns रिटर्न will make you so proud. आप खुश हो गए, आप बहुत गर्व महसूस करोगे कि मैंने अच्छा वो उपवास किया And the returns will always make you happy. और वो खुश कर देगा। In Jesus' यीशु के mighty नाम name में। we pray. आमीन। Amen.